This conference will now be recorded. So, good morning, students. In yesterday's session, we have discussed about DML statements, right? Now, before moving ahead, right, uh, I would like to take your focus on the special category, or not special, rather important category of this programming language, or any programming language, right? So, let me open the notepad first. Yeah. So, now you are having all of you must all of you are using your cell phones, right? You are using mobile phone. If you wanted to save the contacts, right, then what you will do, suppose you are having one friend named Sunil, right? Then what you will do, you will save his name, and in front of his name you will save his number, let's say 29823667788, right? That is what his number is. Okay, so you are saving the phone number, right? But with same some name, right? But with same some name, right? So let's see it. Now the second thing is that this is the only thing that you can save in your phone. No, right? Now consider an example. Tomorrow I want to wake early. मुझे कल जल्दी उठना है. Like let's take मुझे I wanted to wake up at 6 a.m. in the morning. So what I will do? I will set the alarm, right? And in case of that alarm, how you will set that alarm? Suppose if I wanted to wake up at 6 a.m., right? Then how means like in case of your mobile, you will be setting some time where when that alarm should ring वो अलार्म कब बजना चाहिए आप उसको सेट करोगे, राइट? सो इफ आई सेट द टाइम एज 6 a.m., राइट? आपने टाइम सेट किया है 6 a.m., तो वो क्या अलार्म क्या करेगा? 6 बजे डॉट बजना शुरू हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, राइट, सपोज you are having some important work to do, right? You are not working in any organization, right? Still you are in a phase of a student. But in case of your organization, right, there are some calendars are there, right? Calendars, and according to that calendar you have to work. For example, in your mobile also you might be setting some reminders, like your friend's birthday on, let's say, 18th of February, your friend is having a birthday. You will set that uh, uh, data in the mobile phone, right, on the calendar, right? So how that data will be saved inside the mobile? Let's say Sunil birthday, right? Sunil birthday is on 18th of February, right? 18th of 02. Okay. So next, right? Next. Next thing is that you are also saving some images in inside mobile, right? आप images या फिर ये भी store कर सकते हो. What I mean to say, videos भी होते हैं आपके इसमें, right? So you will be saving some like Sunil photo, है ना? तो आपने नाम दिया है ना? इमेज को you can give any name like Sunil photo, and then that image will be stored, right? Here I can't show the photo over here. You can also have Sunil video. Sunil video. Okay. Then you will be storing it like Sunil का जो भी video रहेगा, you will be storing it into the mobile. Now, suppose now you are staying in a hostel, your parents are giving you the money, आपको आपके पेरेंट्स पैसे भेज रहे हैं. सपोज वो महीने में मंथली दे आर गिविंग यू 5,000 और 10,000 रुपीज, राइट? सो यू आर आपको हिसाब लगाना है कि मुझे पापा ने मंथ के स्टार्टिंग में इतना पैसा दिया था, 10,000. सो उसमें से मैंने कितना खर्च किया. सो जैसे आप कैलकुलेटर ओपन करोगे, व्हाट यू विल बी डूइंग? You will be entering that 10,000, then minus 2,000, then 4,000, right? So that data is also saving somewhere in your mobile. वो आपको UI पे दिख रहा है, but वो मोबाइल में कहीं तो सेव हो रहा है, right? So
let's say amount, right? Amount. Okay. Okay. So 10,000 or 5,000, whatever it may be. Now, now the next thing is that tomorrow Sunil, what Sunil is doing, Sunil क्या करता है, कल जाके नया सिम बदलता है, सॉरी उसका नंबर चेंज करता है। सुनील क्या करता है, उसका सिम चेंज करता है। देन व्हाट विल हैपन, आप ये नंबर जो आपने आपके मोबाइल में जो डेटा सेव किया था, सुनील के नाम के सामने जो नंबर सेव किया था, वो नंबर आप चेंज कर सकते हो क्या? यस, यू कैन डेफिनेटली चेंज दैट नंबर, राइट? आप वो नंबर चेंज कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, वही वहीं पे जाके एडिट करना है और उसको चेंज कर देना है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज दैट अलार्म, कल मुझे 6 बजे उठना था, बट परसों मुझे 7 बजे उठना है। देन कैन आई चेंज दिस अलार्म? यस, आई कैन चेंज दिस अलार्म। 6 से 7 में सेट कर सकता हूँ, राइट? देन नेक्स्ट थिंग इज दैट मैंने सुनील का बर्थडे सेव किया था, लाइक 18 फरवरी। कल को मुझे उस सुनील का बर्थडे निकाल के अनिल का बर्थ डेट सेव करना है। देन कैन आई चेंज दिस डेट? यस, आई कैन चेंज दिस डेट। कल ये मेरा सुनील का फोटो था, कल मुझे लगा सुनील का ये फोटो निकाल देते हैं, सुनील का कोई अपडेटेड फोटो लगा देते हैं वहीं पे। सो कैन आई डू? यस, आई कैन डू। इस ये महीने में मुझे पापा ने 10,000 रुपये दिए थे, नेक्स्ट मंथ में मुझे फादर ने 5,000 रुपये दिए। सो कैन आई चेंज दिस वैल्यू? यस, वी कैन। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? What is the moral of the story? The story is that the story is that these these values, right? ये जो सुनील के आगे सुनील का फोन नंबर मैंने सेव किया है, राइट? ये सिस्टम में ये सेव हुआ है, राइट? सिमिलरली सिस्टम में 6 AM सेव हुआ है, राइट? सिमिलरली सिस्टम में क्या सेव हुआ था, 18 फरवरी सेव हुआ है। सिस्टम में क्या सेव हुआ है, सुनील का फोटो, सुनील का वीडियो, 10,000, ये सिस्टम में सेव हुआ है। बट टू अंडरस्टैंड दिस, ये किसका नंबर है, तो उसको हमने क्या दिया था कि भाई ये सुनील का नंबर है, राइट? ये क्या है, ये सेकंड जो है 6 AM, ये डेट सॉरी टाइम है, राइट? ये क्या है, आपका टाइम है, राइट? सिमिलरली व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये डेट है, राइट? ये डेट सिस्टम में से हो रहा है, बट आपको दिखते समय क्या दिखेगा, दिस इज सुनील्स बर्थडे, राइट? आपको मोबाइल पे क्या मैसेज आएगा, सिर्फ टुडे इज सुनील बर्थडे, राइट? यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इमेज सिस्टम में सेव होगी, बट आपको क्या नाम दिखेगा, सुनील्स फोटो, सुनील्स वीडियो, राइट? एंड 10,000, राइट? दैट मीन्स दैट मीन्स ये क्या होता है, दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ये जो मैंने बोला है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। अनिल, सॉरी सुनील, अलाराम, है ना, और बर्थडे, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, या फिर ये उसके नीचे वाला फील्ड, या उसके नीचे वाला फील्ड, है ना, ये इमेज, फोटो, राइट, या फिर अमाउंट, दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल? बिकॉज बिकॉज दे आर, इट्स वैल्यू कैन चेंज्ड, उसका वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, वैरी, इट कैन बी वेरिएबल। नाउ टेल मी ये ये जो अलार्म है, ये मैं जो अलार्म सेट कर रहा हूं मोबाइल में, राइट, वो कल सुबह 6 बजे का मुझे लगाना है, राइट? नाउ टेल मी, कैन आई सेट 6 AM के जगह पे मैं 7 AM कर सकता हूँ, 8 AM कर सकता हूँ, राइट? मीन्स मैं यहाँ पे उसका वैल्यू क्या कर सकता हूँ, 6 AM या 7 AM या वॉट एवर 24 आवर में से जो भी टाइम चलता है, वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। बट टेल मी, कैन आई सेट हियर, वो ये मतलब ये जो वेरिएबल है अलार्म, राइट, इसमें हम सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं, व्हाट कैन वी स्टोर, ओनली टाइम। बट टेल मी, वहां पे हम कोई नंबर सेट कर सकते हैं क्या, लाइक ये 10,000 जो करेंसी या फिर नंबर वैल्यू है? नो, वी कैन नॉट स्टोर, राइट? सो जो ये कैलेंडर है बर्थडे, राइट, बर्थडे जो कैलेंडर है, सुनील का जो बर्थडे है, राइट, वो 18 फरवरी को है। सो कैन वी चेंज दिस, इसकी जगह पे मैं सुनील का फोटो डाल सकता हूँ क्या, ये वैल्यू निकाल के 18 फरवरी निकाल के उसको जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ क्या, सुनील का फोटो? नहीं डाल सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज बिकॉज ये जो वेरिएबल है, इट कैन स्टोर ओनली
डेट वैल्यू, ये क्या स्टोर करता है, सिर्फ डेट वैल्यू। नाउ ये जो नंबर है, ये नंबर हटा के क्या मैं यहाँ पे कोई टाइम डाल सकता हूँ क्या? नो, आई कैन नॉट पुट टाइम हियर, राइट। ये जो आप जब कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे अल्फाबेट डाल सकते हो क्या? नो, यू कैन नॉट डू दिस, राइट। सो सो द थिंग इज दैट हर सिस्टम में या फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास तीन चीजें होती है। एक तो होता है वेरिएबल। वेरिएबल इज वेरिएबल होता है जिसका इट्स जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर, यूजर को समझने के लिए वेरिएबल होता है। आप आपके मोबाइल में जैसे नंबर सेव करते हैं, मॉम डैड, या आपके फ्रेंड के नाम से नंबर सेव करते हो, राइट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज बिकॉज वो आपको जल्दी समझ में आए, राइट, इसीलिए करते हो। बट ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने सुनील का नंबर मोबाइल में सेव किया तो उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। नो, दैट मीन्स इट इज इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, राइट। एंड उसको वेरिएबल क्यों बोलते हो? बिकॉज इट्स वैल्यू कैन बी वेरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसका वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। द मैटर ऑफ द फैक्ट, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अ, अ, जब भी आप कैलकुलेटर ओपन करोगे, यू कैन एंटर ओनली नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू आर नॉट एबल टू एंटर दिस वैल्यूज, अल्फाबेटिक वैल्यूज, राइट। ए बी सी डी आप नहीं एंटर कर सकते हो। व्हाई? क्योंकि उसका जब वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें बताया है कि जब भी कैलकुलेटर में जो डेटा आएगा, वो जब किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, वो वेरिएबल सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करे, राइट। सो सिर्फ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करे? न्यूमेरिक। जब भी आप कैलेंडर के ऐप में जाओगे और आप कैलेंडर में बुक करोगे कि 18 फरवरी को सुनील का बर्थडे है, तो उस जगह पे आप सुनील का फोटो सेव कर सकते हो क्या? नो, यू कैन ओनली सेव डेट वैल्यू इनसाइड इट, राइट। सिमिलरली मेरी कोई मीटिंग है, राइट, आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और वो ऑर्गेनाइजेशन में डेली अभी रोज मेरी ऑफिस में 3-4 मीटिंग्स होती है, राइट, वर्चुअल मीटिंग, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। सो इन दैट केस मुझे मेरे कैलेंडर में मुझे दिखता है, राइट, कि मेरा आज कितना है, 21 तारीख को, 21 ऑफ जुलाई को मेरा 3 बजे मीटिंग है। सो इस केस में क्या क्या चीजें जाएगा? मीटिंग, मीटिंग में कैसे स्टोर होता है डेटा? फिर 21 जुलाई, एंड टाइमिंग क्या है? 21 जुलाई 2023, टाइमिंग एट 3 PM मेरा एक मीटिंग है, राइट, तो वो मुझे दिखेगी। सो ये जब मुझे दिखेगा, तो ये जगह पे ये जो मीटिंग का जो वेरिएबल है, इसमें मैं किसी का नाम स्टोर कर सकता हूँ क्या? नो, बिकॉज बिकॉज व्हाई इट इज सो? बिकॉज मोबाइल में या फिर जो भी कैलेंडर का एप्लीकेशन है, उसमें उसका क्या फिक्स किया है? डेटा टाइप। Now, what do you mean by data type? Type of a data a variable can hold. Now, tell me what is variable? Variable is the any name given to the is the any name that should be identified very easily. यूजर को समझने के लिए इजी जाए, इसलिए एक टेम्पररी नेम दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। और जो एक्चुअल डेटा होता है, दैट इज दिस डेटा। नाउ सपोज मैंने इसका ये क्यों किया गया है? वेरिएबल को डेटा टाइप्स क्यों देने जरूरी है? अगर मैं ये मीटिंग को डेटा टाइप ना दूं, अगर ये डेटा टाइप का होते ही नहीं, हमारे जमाने में अगर डेटा टाइप्स होते ही नहीं, तो ये मीटिंग के जो मीटिंग है मेरा, यहाँ पे मैं कुछ भी सेव कर पाता था। यहाँ पे मैं नंबर भी सेव कर सकता था, या अमाउंट भी, या सिर्फ डेट भी, या सिर्फ टाइम भी, या इमेज भी, या फोटो भी। बट वो सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगा क्या? नो, राइट। सो इसके लिए मुझे डेटा टाइप्स डिफाइन करने पड़ते, कि भाई ये जो वेरिएबल है, इसमें मैं सिर्फ डेट स्टोर कर सकूं, कि भाई ये जो वेरिएबल है, इसमें मैं सिर्फ टाइम सेट कर सकूं, ये जो वेरिएबल है, इसमें मैं सिर्फ क्या सेट कर सकूं? डेट एंड टाइम दोनों सेट कर सकूं।
ये जो वेरिएबल है इसमें मैं क्या सेट कर सकूं, सिर्फ अल्फाबेटिक वैल्यू सेट कर सकूं। ये जो वेरिएबल है इसमें मैं क्या सेट कर सकूं, सिर्फ सेव कर सकूं, न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर सकूं, राइट। So there are different data types are available, right? In Salesforce support different data types, right? So we will discuss those data types one by one, and these data types are nevertheless are very much similar in most of the programming language, right? So it doesn't matter कि ये Salesforce है या Java है या Python है, उसमें सभी में मैं बोल रहा हूं आपको, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 95% सेम होती है, 95%। सिर्फ आपको थोड़े से सिंटैक्स अगर आ जाए, एक भी कोडिंग लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो, very easily you can understand that now. So do you you are now aware of this data types, वेरिएबल एंड वैल्यूज। तो हमारा हमारे सिस्टम में क्या क्या हमें पहले हमें देखना है, डेटा टाइप्स, राइट। सो नाउ व्हाट वी विल डिस्कस नाउ, डेटा टाइप्स, राइट। सो डेटा टाइप्स मींस व्हाट, टाइप ऑफ अ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड, किस टाइप का वैल्यू वेरिएबल होल्ड कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। सो वेरी फर्स्ट डेटा टाइप दैट द सेल्सफोर्स सपोर्ट इज स्ट्रिंग। कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम क्या सेव कर सकते हैं, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक एंड नंबर 0 to 9 तक, ए से लेके जेड तक एंड क्या है, 0 से लेके नंबर तक, हम 0 से लेके 9 तक एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर, ऑल स्पेशल कैरेक्टर, राइट। मतलब फर्स्ट डेटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं हम, जिसमें वो क्या किसको किसको सपोर्ट करेगा, ऑलमोस्ट सबको सपोर्ट कर देता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। ए से लेके बी तक, ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक सभी नंबर और सभी स्पेशल कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट, हैश, हाइफन, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो जो आपके नंबर के ऊपर शिफ्ट दबा के आप जो ये कीज जो आते हैं आपको, राइट, दैट इज नोन एज स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। सो दो स्पेशल कैरेक्टर्स आर कैन बी एंटर्ड इन अ स्ट्रिंग, राइट। बट स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए एक मेथड है, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए सिस्टम को समझने के लिए ये एक मेथड है और एक टेक्निक है कि आपको स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल कोट में इंक्लूड करने पड़ते हैं, सिंगल कोट में क्या करने पड़ते हैं, इंक्लूड करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी डिक्लेयर। फॉर एग्जांपल, किस तरह से मैं स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर कर सकता हूं, एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल, राइट, स्ट्रिंग, मुझे बता, मेरे को मेरे सिस्टम में मेरा एड्रेस सेव करना है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा वेरिएबल आ रहा है एड्रेस नाम का, राइट, एड्रेस नाम का मेरा वेरिएबल है, किस टाइप का है उसका डेटा, डेटा टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है मतलब उसमें मैं क्या क्या स्टोर कर सकता हूं, उस वेरिएबल में मेरा जो एड्रेस नाम का वेरिएबल है उसमें मैं स्टोर कर सकता हूं ए से लेके जेड तक सारे न्यूमेरिक अल्फाबेट्स, 0 से लेके 9 तक सारे अल्फाबेट्स। तो मैं एड्रेस इजीली सेव कर सकता हूं इसमें। तो इक्वल टू डालेंगे हम, इक्वल टू मीन्स क्या होता है, असाइन, कि इसमें डाल दो, क्या डालना है मुझे, लेट्स से फ्लैट नंबर ए डैश 506, राइट, स्काईलाइन अपार्टमेंट, स्काईलाइन अपार्टमेंट, वाकड़, पुणे, right. So here in this case, in this way we can what we can store here, here अगर आप देखोगे इसमें मैंने क्या क्या स्टोर किया है, इसमें मेरा अल्फाबेट वैल्यूज भी है, नंबर वैल्यूज भी है और स्पेशल कैरेक्टर, ये जो डैश है या हाइफन है दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। सो इसमें मैं सारे ही स्टोर कर सकता हूँ, राइट। या फिर आपके इसमें स्ट्रिंग, दूसरा एग्जांपल है, इवन इफ आई सिलेक्ट द स्ट्रिंग एज अ नेम, नेम अगर मैं डालू, लाइक सपोज नेम इज सुनील, राइट। सो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल किसका, स्ट्रिंग का, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज योर डेट। डेट क्या स्टोर करता है,
First data type that we have discussed is a string. Second data type is a date. Date में क्या स्टोर करेगा? वेरी सिंपल, इट विल स्टोर डेट वैल्यू, राइट? क्या स्टोर करेगा है ये? डेट वैल्यू स्टोर करेगा, राइट? तो इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे हम? डेट, बर्थडे इज, बर्थडे का वैल्यू हम डाल देंगे, राइट? लेट्स से 18/02/1990, राइट? सो इस तरह से हमने डेट सेव करनी है, राइट? मतलब किस तरह से डेटा टाइप सपोर्ट करेगा ये, राइट? सो इन दिस वे, बट हियर यू कैन सी दैट कि ये सिंगल कोट में नहीं लिखा है, इसमें हमने किस में लिखा था? सिंगल कोट में. सिमिलरली नेक्स्ट डेटा टाइप दैट द सेल्सफोर्स सपोर्ट इज अ टाइम. कौन सा है? टाइम. टाइम में हम क्या स्टोर करते हैं? टाइम स्टोर करते हैं. किस फॉर्मेट में? एच एच, राइट? सॉरी, एच एच. एच एच मीन्स क्या रहेगा? आवर, राइट? फिर यहाँ पे होता है एम एम, मीन्स मिनट, एंड देन सेकेंड्स, राइट? इस तरह से आपका डेटा टाइम फॉर्मेट में सेव होगा. नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट डेटा टाइप दैट द सेल्सफोर्स सपोर्ट इज द डेट एंड टाइम. कौन सा है? डेट एंड टाइम. तो ये डेट एंड टाइम में हम क्या स्टोर करते हैं? डेट एज वेल एज टाइम. मतलब 18 फरवरी, सॉरी 21 जुलाई को मेरा 3 बजे मीटिंग है, तो इसमें डेट और टाइम दोनों ही सेव होंगे ये वेरिएबल में, राइट? द नेक्स्ट वेरिएबल दैट द सेल्सफोर्स सपोर्ट इज इंटीजर. कौन सा है? इंटीजर, राइट? इंटीजर में क्या स्टोर होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज. कौन से वैल्यू स्टोर होंगे? न्यूमेरिक, ओनली नंबर. यहाँ पे अल्फाबेट नहीं आएंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल क्या रहेगा? इंटीजर, इंटीजर लेट्स से क्या बोल सकते हैं हम? फीस, है ना? फीस इज इक्वल टू 1000, है ना? राइट? सो इस तरह से हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट? सो हियर आल्सो यू कैन सी दैट कि मैंने इसको सिंगल कोट में नहीं लिखा है. इंटीजर वैल्यू को कभी भी हम सिंगल कोट में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसको ही सिंगल कोट में डालेंगे. अदरवाइज ऑल अदर वेरिएबल्स और द डेटा टाइप्स विल नॉट हैव this this single quote, right? The next data type that the Salesforce support is your long. Long, कौन सा डेटा टाइप है Salesforce सपोर्ट करता है? लॉन्ग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग? लॉन्ग मीन्स अभी ये जो स्ट्रिंग, ये जो इंटीजर डेटा टाइप है मेरा, राइट? दिस इंटीजर डेटा टाइप, दिस इंटीजर डेटा टाइप, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब समझ में आएगा, राइट? इन केस ऑफ दिस इंटीजर डेटा टाइप, ये कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर करता है? -2^31 से लेके 2^31 तक. Do you understand? Let me type it here. So it can store the value from -2 raised to, now raised to, you can't say here how to type raised to, 2 raised to, understand this is 2 raised to 31, right? ओके, 2^31 से लेके कहां तक स्टोर करता है ये? 2 से 2^31 - 1. कहां से कहां तक होता है फिर ये? 2^31 - 1. सो ये यहां से यहां तक स्टोर करता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 2^31? मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 31 टाइप, 31 टाइप, राइट? व्हेन वी से दैट द 2 raised to, or let me retype it once again for you, so this will be clear. So -2 raised to, suppose this is raised to symbol, okay? 2^31 to 2^31 - 1. So now इस डेटा टाइप में, इंटीजर डेटा टाइप में कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर होता है? -2^31 to 2^31. Now what is 2^1? 2^1 is 2. 2^2 क्या है? 4. 2^3 क्या है? 8. 2^4 क्या है? 16. 2^5 क्या है? 32.
ऐसे ही 231 का कुछ वैल्यू रहेगा, वहीं तक इसका रेंज है इंटीजर का, राइट। बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? सो अगर आपको उससे भी बड़ा वैल्यू स्टोर करना है, देन यू नीड टू यूज द वेरिएबल कॉल्ड लॉन्ग। लॉन्ग कहां से कहां तक सेव करता है? तो ये सेव करता है -2 63 टू, जस्ट मिनट, -2 63 से लेके 2 63 - 1, यहां तक ये क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, राइट। 63 मतलब अगेन 60, इसका लिमिट बढ़ गया, राइट। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड लॉन्ग। बाकी सब चीजें सेम है। आप लॉन्ग में भी न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करोगे, बट उसमें आप ज्यादा लिमिट है, उसका ज्यादा रेंज है। आफ्टर लॉन्ग द नेक्स्ट वन इज द डेसिमल, नेक्स्ट इंटीजर इज द डेसिमल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल, राइट। इसमें इंटीजर या फिर लॉन्ग डेटा टाइप में आप कोई भी वैल्यू इस तरह से नहीं स्टोर कर सकते, लाइक 12.34, राइट। आप डेसिमल पॉइंट्स के बाद में कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट। सो फॉर दैट केस यू नीड टू यूज द डेसिमल डेटा टाइप। इसमें आप क्या कर सकते हो? वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट भी स्टोर कर सकते हो, राइट। सो डेसिमल इज सेम एज न्यूमेरिकल, sorry, integer value, integer and long, but with some additional features it can store what, information after decimal point also. Then now the next data point, now the next data type is your double. What is next data type? Double. Now double is again same as that of what, decimal, but it can store the value uh, uh, after decimal point with a large number. यहाँ पे अगर डेसिमल और डबल में क्या डिफरेंस है कि डेसिमल में, in case of decimal data type, we can store only two values. You can only store, or you can have only two numbers after the decimal point. You cannot have the value like 12.3456. No, you cannot. ये आपने डाला भी तो ये सेव कहां तक करेगा? 12.34 तक ही सेव करेगा, ओनली 2 डिजिट्स तक ही सेव करेगा। बट इफ यू वांटेड टू store the value or the more number of digits after decimal point, in that case you have to use the decimal as, sorry, double as a data type, right. So next one is your boolean, right. Next data type is your boolean data type. Okay, so what is this boolean? You can store only true and false value, एक तो है एक तो नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यू माइट हैव लर्न, राइट। सो बुलियन में आप क्या स्टोर कर सकते हो कि यस और नो, लाइक चेक बॉक्सेस। जब हमने ईमेल टेम्पलेट में, ईमेल टेम्पलेट देन व्हेन वी हैव डिस्कस्ड, वहां पे एक चेक बॉक्स था, राइट, इज एक्टिव। इज एक्टिव को जब आप टिक करोगे, और इज एक्टिव और अवेलेबल टू यूज ऐसे कुछ चेक बॉक्स है, राइट। जब आप उसको चेक बॉक्स को टिक करते हो, अवेलेबल टू यूज मींस क्या होता है? यस। और जब उस आप वो टेक चेक बॉक्स को की टिक को निकाल देते हो, अवेलेबल टू यूज मींस क्या होता है? इट्स नो, इट्स नॉट अवेलेबल टू यूज, राइट। somebody approached me, और उन्होंने पूछा था कि सर मुझे वो ईमेल टेम्पलेट नहीं दिख रहा है। सो उन्होंने क्या किया था, वो जो अवेलेबल टू यूज का टिक बॉक्स चेक बॉक्स था उसको टिक नहीं किया था, तो उसको उन्हें दिख नहीं रहा था, राइट। सो अवेलेबल टू यूज इज अ चेक बॉक्स, अवेलेबल टू यूज इज अ चेक बॉक्स, और उस चेक बॉक्स में कौन सा डेटा टाइप है? यस और नो। सिस्टम में बैकएंड में क्या स्टोर होता है? ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो बुलियन डेटा टाइप में क्या स्टोर होता है? ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, राइट। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? बुलियन, सपोज उसका वैल्यू है इज एक्टिव, नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, यू कैन हैव ट्रू और फॉल्स हियर, यू कैन स्टोर ट्रू और फॉल्स हियर, राइट। After that, next data type that the Salesforce support is the ID. You know ID? In case of Salesforce for every record, Salesforce automatically, when you create some record, right, Salesforce automatically creates some ID, isn't it? And for that ID, if you wanted to store that ID somewhere, right,
उसके लिए आपको एक स्पेशल डेटा टाइप दिया है सेल्सफोर्स में, दैट इज आईडी. यू कैन स्टोर दैट आईडी inside this variable, right? Then the next data type that the Salesforce support is the blob, blob. It is binary long object, binary large object. Now what is this blob object, blob data type, right? Suppose in case of your Salesforce, right, if you are having some images, right, or some videos, and that you wanted to store inside the Salesforce, and उसको आपको Salesforce पे स्टोर करके उसको आपको यूजर इंटरफेस यूआई पे, आपको आजकल वेबसाइट दिखते हैं ना एकदम अच्छे अच्छे, ऐसे इमेजेस यहाँ से वहां जाती है ना, स्क्रॉल होती है. सो आपको उस तरह से करना है तो आपको सबसे पहले इमेजेस सेल्सफोर्स में स्टोर करनी पड़ेगी. और वो सेल्सफोर्स इमेजेस एज इट इज कभी स्टोर नहीं करता है. इट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्मेट. बाइनरी मीन्स 0101 के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है, राइट, एंड देन उसको स्टोर करता है. सो इमेज या फिर वीडियो स्टोर करने के लिए और उस तरह के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ता है? ब्लॉब. कौन सा करना पड़ता है? ब्लॉब, right? The next data type that the Salesforce support is the object. Is a object. Now ये जो object है, it's a special type of data type. Now what is the special? अब तक हमने ये जो 10-12 डेटा टाइप्स पढ़े, राइट, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, लॉन्ग, बुलियन, डेसिमल, है ना, डेट, डेट टाइम, ये जो भी वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए, राइट, राइट. सो जैसे स्ट्रिंग में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? ओनली स्ट्रिंग वैल्यू. इंटीजर में ओनली नंबर, और वो भी अप टू सर्टेन लिमिट. लॉन्ग में न्यूमेरिकल वैल्यू रेंज बढ़ गया. डेट में सिर्फ डेट स्टोर कर सकते हो. टाइम में सिर्फ टाइम. डेट एंड टाइम में दोनों, राइट, डेट और टाइम दोनों, राइट. सो टेल मी, क्या मैं डेट के जगह पे न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर सकता हूं क्या? नहीं, राइट. दैट इज द लिमिटेशन. अगर वैसा होने लगेगा तो सिस्टम हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, राइट. सो दैट इज फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द यूजर, द डेटा टाइप्स डिफाइन किए गए हैं, राइट. बट ऑब्जेक्ट इज द काइंड ऑफ अ डेटा टाइप. उसमें हम सारे ही टाइप के डेटा, मतलब उसमें हम डेट डेट भी स्टोर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी सारे स्टोर कर सकते हैं, राइट, सारे ही. बट द थिंग इज दैट इसमें स्टोर करने के बाद आपको अगर उसको यूआई पे दिखाना है, ये तो बैकएंड में सेव हो जाएगा, मगर यूआई पे दिखाने के लिए, यूआई मीन्स जो स्क्रीन आपको दिखती है ना, उसको दिखाने के लिए, राइट, आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा. टाइप कास्ट मीन्स व्हाट? उसको फिर से एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए और कुछ लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. तो दैट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस. बट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आप कभी यूज मत करना. बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन, if the time permits, then we will discuss this object data type also. So all these are the all called as the primitive data type. इसको क्या बोलते हैं हम? Primitive data type. Okay. So in these all are called as what? Primitive data types. जो भी हमने अभी तक पढ़े, they all are primitive data types, right? So apart from this primitive data type, there is yet another data type that is called as S object data type. क्या बोलते हैं हम उसको? एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. क्या बोलते हैं हम उसको? एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. नाउ व्हाट इज दिस एस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप? नाउ ये तो अभी तक जो हमने देखा वो जनरलाइज्ड डेटा टाइप है. नेक्स्ट वन इज योर एस ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस एस ऑब्जेक्ट? नाउ इन केस ऑफ सेल्सफोर्स वी आर स्टोरिंग द डेटा. हम डेटा किस में स्टोर करते हैं? ऑब्जेक्ट में, राइट. किस में स्टोर करते हैं हम डेटा? ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट मींस व्हाट? टेबल. वेरी सिंपल, राइट. अभी हमने जो पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, पेशेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उसका एपीआई नाम का, व्हाट वाज इट्स एपीआई नेम? पेशेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी. और इसमें कौन से फील्ड थे? नेम था, राइट. देन वी वर हैविंग फील्ड्स, है ना, एंड देन वी वर हैविंग सम डेट ऑफ कॉल, है ना, डेट ऑफ कॉल, है ना, एंड देन वी वर हैविंग, या फिर इसको एपीआई के इसमें ही लिखते हैं हम, है ना, डेट ऑफ कॉल, है ना,
then after that we were having some city, right? इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हमने बनाए थे, राइट? सो ये मेरा पेशेंट का टेबल था। सो इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड गया, नेम सुनील, राइट? फिर उसने डेट ऑफ कॉल कब किया वो डेट स्टोर होगा, राइट? फिर फीस का क्या है वो स्टोर होता है, राइट? फिर सिटी क्या है वो स्टोर हो रहेगा, राइट? सो ये मेरा किसका है, ये मेरा कौन सा टेबल है, पेशेंट। सिमिलरली आई एम हैविंग सम अदर ऑब्जेक्ट, राइट? दूसरा एक ऑब्जेक्ट था, उसका नाम क्या था, हॉस्पिटल ब्रांच, बराबर है? सेकेंड ऑब्जेक्ट इज माय हॉस्पिटल ब्रांच ऑब्जेक्ट, है ना? सो फॉर दिस हॉस्पिटल ब्रांच ऑब्जेक्ट what fields we are having here, name, right? नेम था, कल ही हमने देखा। दूसरा क्या था, right? नेम। आफ्टर दैट वी वर हैविंग सम वेबसाइट, है ना? website, you can have anything, है ना? then we were having like some address, इस तरह से ये था, राइट? सो टेल मी, ये जो पेशेंट, ये एक टेबल है पेशेंट, ये एक टेबल है हॉस्पिटल ब्रांच। सो मेरे सिस्टम में ऐसे कितने टेबल्स है, n नंबर ऑफ टेबल्स। कितने टेबल्स है, n नंबर ऑफ टेबल्स, राइट? सो हर एक टेबल का फॉर्मेट क्या रहेगा, या फिर हर एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, अलग अलग। देखो, पेशेंट में मेरे जो फील्ड्स है और हॉस्पिटल ब्रांच में मेरे जो फील्ड्स है या कॉलम से वो अलग अलग है, राइट? सिमिलरली मेरे इसमें और एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से डॉक्टर, उसके फील्ड्स अलग अलग रहेंगे, राइट? फिर ये तो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट हुए, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमने खुद में बनाए थे। बट सेल्सफोर्स इटसेल्फ क्रिएट सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट का नाम है अकाउंट, राइट? फिर अकाउंट के जो फील्ड्स है वो अलग अलग रहेंगे। और एक ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के जो फील्ड्स है वो अलग अलग रहेंगे, उसके खुद के कॉलम्स रहेंगे, राइट? सो व्हाट सेल्सफोर्स सपोर्ट्स ओवर हियर, आपको अगर प्रोग्रामेटिकली सेल्सफोर्स के किसी ऑब्जेक्ट को लाना है, राइट? सेल्सफोर्स के किसी ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामेटिकली आपको उसके उसके साथ डील करना है, तो उसका डेटा टाइप रहेगा उसका एपीआई नेम। उसका क्या रहेगा, एपीआई नेम उसका डेटा टाइप रहेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर पेशेंट ऑब्जेक्ट के साथ में, देखो हर एक जो वेरिएबल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, हर एक वेरिएबल को इट्स मैंडेटरी टू हैव सम डेटा टाइप। इट्स वेरी मैंडेटरी। आप अगर वो वेरिएबल को डेटा टाइप नहीं दोगे, राइट, नहीं दोगे, तो काम बात नहीं बनेगी। आपको बताना पड़ेगा मेरा जो ये डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल है वो किस डेटा, उसका डेटा टाइप क्या है, तो उसका डेटा टाइप है डेट। मेरा जो एड्रेस का जो फील्ड है उसका डेटा टाइप क्या है, तो उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, राइट? या फिर आप एज अ स्टूडेंट हो, राइट? आपको जो मार्क्स मिलते हैं, जो मार्क्स है उस मार्क्स का डेटा टाइप क्या रहेगा, इट्स अ नंबर वैल्यू, राइट? सो उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर, राइट? सिमिलरली अगर मुझे पेशेंट का डेटा, पेशेंट ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे प्रोग्रामेटिकली यूज करना है, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, तो उसका एपीआई नेम मतलब वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी वाला नाम, राइट? सो दैट विल बी पेशेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। सिमिलरली हॉस्पिटल ब्रांच का अगर मुझे डील करना है प्रोग्रामेटिकली, तो उस अगर, क्योंकि हर एक, जैसे जैसे मेरा डेट ऑफ, मेरे को सुनील का बर्थ डेट सेव करना है, राइट? तो सिस्टम में मैं कैसे सेव करूंगा, उसका कुछ नाम रहेगा ना, सुनील बर्थ डेट, राइट? ये क्या हो गया, वेरिएबल, राइट? फिर वो वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया है, डेट, लाइक 18 फरवरी 1990, राइट? वो सुनील का डेट ऑफ बर्थ मैंने कहां पे सेव किया है, सुनील डेट ऑफ बर्थ नाम का एक वेरिएबल है, और एक्चुअल वैल्यू मैंने उस वेरिएबल में स्टोर किए, और उसका डेटा टाइप है भाई डेट, राइट? सिमिलरली, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर मुझे पेशेंट का अगर डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, अगर जब मुझे सुनील का डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ उसका डेट ऑफ बर्थ सेव करना था, तो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया सुनील बर्थ डेट, राइट?
और वो वैल्यू उसमें स्टोर कर दिया, और उसका डेटा टाइप क्या रखा है मैंने, डेट। बट मुझे पेशेंट का डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, लाइक सपोज वेरिएबल है पेशेंट डेटा, राइट। तो पेशेंट का डेटा मुझे पेशेंट डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, पेशेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। सिमिलरली हॉस्पिटल ब्रांच का अगर डेटा मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, हेलो। हेलो।
Hello. Hello, students. Hello. Hello. Yes, ma'am. Uh, Hello, ma'am. Wait for a while. Hello, student. We'll meet in the evening, 6 p.m. Okay?